my name is Abir Bhaskar, and I am an Indian American student at the United Nations International School located here in New York. I find myself in a very international household. In fact, our family has moved every 3 to 4 years on average from country to country. And what this had was a negative impact on my education. I had to adapt to new school systems and new education systems. And on top of the actual education itself was the social aspect of it, where I had to adapt to new systems and norms and cultures at the same time. However, luckily for me, I had access to a lot of the resources that were there to help me settle in and sort of become one with the culture that was there at the time. However, that is not the case for everyone. And in India, in fact, in rural India, there is an issue called distress seasonal migration that is currently plaguing a lot of the children and their educations. This issue piqued my interest during the COVID-19 pandemic, where due to the virus, there was a mass migration from a lot of families from urban communities in India towards rural communities in India. What truly stuck out to me was the effect that it had on children, especially, and how due to such events occurring at such early stages of their lifetime, what that translates to in according to their education and their literacy. मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं यहाँ पर हरियाणा में 2-3 साल रहा हूँ। वहाँ पर ही मैंने हिंदी थोड़ी सीखी। मेरी जो ज़िंदगी है वो आप लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी अलग है, लेकिन हम सब सेम हैं। हम सब एक जैसे। In this circumstance of distress seasonal migration, what happens is that in that yearly term, students only cover certain aspects of the syllabus of the content for that year of the school year, and what that does is that leaves a lot of fundamental basic knowledge that these children should be learning left out. It's like they're not able to fully learn. That's very detrimental to the future of these children, which is very, very unfortunate and very disheartening for me to see. ये तो बच्चों के लिए काफ़ी कष्टप्रद है, और बच्चों का विकास इससे रुक जाता है, क्योंकि जिस उम्र में उनको खेलने कूदने, दोस्तों के साथ हंसने बोलने के मौके हैं और स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए, उस समय वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑड वर्क करते हुए। फॉर एग्जांपल कि वो घर में कुकिंग हो रही तो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, या छोटे बच्चों का केयर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ब्रिक किल्स पे जो ईंटें हैं उनको सुखाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से उनके लिए एक डेवलपमेंट में एक बाधा बन जाता है। अरे भट्टे जाते थे पिता के साथ। भट्टे में क्या करते थे? वहाँ पर ईंट कभी कभी लौंदी बनाते थे, तो पापा को गोंदी देते थे, उसमें ईंट पड़ते। वहीं पर माता पिता के जो कुछ काम का होता छोटे मोटे हम काम करते थे, और माता पिता बर्बाद। लगभग 10-12 परिवार ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और इस वजह से उनके साथ पूरा परिवार जाता है, बच्चों को भी जाना पड़ता है। वो कितनी दूर जाते हैं पढ़ाई करने में? निर्भर करता है कि उनको रोजगार कहाँ मिलता है। कुछ तो हमारे बगल के जिलों पे भी जाते हैं, जैसे फतेहपुर है, और कुछ तो यूपी के बाहर जाते हैं। गरीबी में तो वो ऐसा ही होता ही, मतलब गरीबी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब नहीं करेंगे तो हमारे वालों बच्चों का भविष्य नहीं सुधरना है। पर उनके पेरेंट्स की मजबूरी है, बिकॉज लाइक दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ कैश, सो दे हैव बोरो मनी in advance to meet their current expenditure, and they go to the brick kilns, so they have to pay off the debts. This it is called distress migration. जो गोड़िया होते हैं, जो सिंघाड़े का सीजन होता है जाड़े का, मुख्य तौर पर ये सितंबर और अक्टूबर का महीना, जहाँ पर वो तालाब में ही ये बिजनेस करते हैं, सिंघाड़ा डालते हैं, तो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। खाना सब लेकर के वहीं रहते हैं, वहीं बनाते खाते हैं।
अभी आप फतेहपुर चले जाइए, उसमें तमाम सारी फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, वहाँ के आदमी प्लान के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी सुविधा पा रहे हैं, अच्छे सब हो रहा है। अब यहाँ अपने बांदा जिले में है ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कुछ, बस वही किसानी मजदूरी छोड़ के कोई काम नहीं। तो हम लोग जब ये वो जिला नहीं जाएंगे नहीं तो हम अपने बच्चों को पेट ही नहीं भर पाएंगे, पढ़ाई तो पीछे रह गई। भाई जब हम जाएंगे तो हमारे साथ बच्चे भी चले गए नहीं। पढ़ाना लिखाना एक तो अलग चीज़ होगी भाई, उन बच्चों को अपना पेट पालन करने के लिए नहीं हो सकता है तो पढ़ाना लिखाना क्या बात है। जो है लड़के भी काम लग जाते हैं भाई देखो भट्टे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, कम से कम ईंटें पलटाते रहेंगे। हाँ, पलायन का 6-7 महीने का टाइम होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी मान लीजिए। सितंबर जो व्यक्ति सितंबर में गया वो अप्रैल में मार्च में आ जाएगा, और नहीं तो जो अक्टूबर में गया वो मई में आता है लास्ट में। यहाँ पे इंडिया में जो ये सीजनल माइग्रेशन है ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ है और ब्रिक किल्न के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो यूजुअली रेनी सीजन में ब्रिक किल्न काम करना बंद कर देता है, तो रेनी सीजन भी फार्मिंग का पीक भी होता है, तो उस समय गांव में काफ़ी फार्मिंग हो रही होती है और एम्प्लॉयमेंट्स भी मिल जाते हैं गांव में। तो जनरली लोग दिवाली के आसपास समवेयर टाइम इन अक्टूबर नवंबर दे मूव टू ब्रिक किल्स, देन दे कम बैक during end of summer, say in June, mid-June or April, they come back. I think one of the most interesting aspects of the distressed seasonal migration issue is the brick kilns and how this manual labor that a lot of the children are forced to endure perpetuates the generational wealth that they are put in themselves, alongside the fact that there is a lack of proper educational institutions and resources and facilities in the brick kilns. समस्या है यहाँ लोगों के पास काम नहीं है, मजदूरी के लिए परमानेंट मजदूरी नहीं है। वो लोग अपना बाहर जाते हैं, अब बाहर जाने के बाद जो 4-6 महीने काम किया उस पे जो उनको एक्स्ट्रा आमदनी हुई वो आमदनी ले करके अब बकाया समय पे यहाँ आकर के वो उसी से काम चलाते हैं। किसी भट्टे और जहाँ भी काम करने के लिए जाते हैं इनका डायरेक्ट उनसे नहीं होता है, ये मीडिएटर के माध्यम से जाते हैं। ये जब कमा के वहाँ पे काम करते हैं, काम करने के बाद जो उसका कमीशन है वो पहले वो ले जाने वाले को मिल जाता है, उनके बाद जो मिला वो इन्हें मिलता है। वो लेकर के आएंगे 4-6 महीना, अब 2-3 महीने जो भी होगा वो खाएंगे, और उसके बाद फिर वो जो मीडिएटर जो उनको लेवा के जाता है उससे फिर एडवांस ले लेते हैं। तो इनको ये नहीं है कि 1-2 साल जाएं उसके बाद इनकी स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर यहीं कुछ करें, यहीं कुछ काम धाम करना चालू करें। इनका एक रूटीन बना हुआ है इस तरह से जाने का। बच्चों का तो खैर है, भविष्य यही है। आपका नाम क्या है? शिवानी। तो आपकी माता पिता अभी आपके गांव में है कि नहीं? नहीं। वो कहाँ चले गए हैं? भट्टा। कितने समय के लिए वो चले गए हैं? वो 8 महीने के लिए। आप लोग को क्या महसूस होता है जब आपके दोस्त भट्टे में जाते हैं? क्यों बुरा लगता है? पढ़ाई में बर्बाद होता है। एजुकेशन की इसमें देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को जो मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पाती है, बाधित होती है। कि बच्चा 2 महीने यहाँ रहा, फिर जाने में उसको एडजस्ट होने में, कहीं भी जा रहा है बच्चा तो उसे एडजस्ट होने में समय बहुत लगता है। तो ये 8 महीने तो बच्चा स्कूल से दूर रहा, जो उसको बेसिक हम लोगों ने 3-4 महीने में, जैसे मान लीजिए मई हो गया, जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, 6-7 महीने 8 महीने जहाँ उन किताबों से वो दूर रहा, वो फिर उसका लेवल वहीं तो वहीं आ जाता है। जब चले जाते हैं तो नुकसान क्या होता है? पढ़ने नहीं आते, चले जाते हैं पापा के साथ। तो फिर उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? हाँ, इन बच्चों के लिए तमाम समस्याएं आती हैं पढ़ाई के सिलसिले को लेकर के। जो परिवार माइग्रेटेड होता है, बच्चे का परफॉर्मेंस गड़बड़ तो हो ही जाता है, क्योंकि जब वहाँ बच्चा जाता है तो ना किताबें लेके जाता है ना कॉपी लेके जाता है, पढ़ाई पे उसका पूरा असर पड़ता है। स्कूल जब खुला था तब पढ़ाई कर रहे थे, कौन सा कक्षा में थे? 6 तो अब छोड़ दिया पढ़ाई? हाँ, 2 साल। 2 साल हो गया, पूरा छोड़ दिया? हाँ। क्यों? क्या किया जाए, नहीं पढ़ाई, पैसा वैसा नहीं हो रहा था, इसलिए मम्मी पापा भी नहीं कर पाए। तो गरीब आदमी क्या किया, तो वही कमाने खाने लगे, वही बाहर जाने लगे। अभी बाहर से आया तो तबीयत थोड़ा डाउन हो गया, यही आ गया, दवा करा रहे हैं।
Usually in vehicles, they have very rudimentary kind of structure to stay. Very small thatched houses, and so they are exposed to vagaries of nature. Too much heat is there because of lot of firing is being done there, and lot of dust is there. So it is not very safe, and one can call it it is dangerous also, because they are handling bricks, and that also is heavy thing. So it can cause some injury to children. ऐसा चीज़ है जो बहुत खतरनाक है और जिससे हमको बच के रहना चाहिए, ऐसा कुछ है? वहाँ जो चिमनी बनी है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चिमनी के ऊपर नहीं जाना है, क्यों? वहाँ पर कहीं पैर भी घुस सकता है तो पैर जल जाता है। जो बच्चे स्कूल मिस कर चुके होते हैं, फिर दोबारा जब वो आते हैं गांव, तो उनका स्कूल आना कम हो जाता है। वो स्कूल जाने से हिचकते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे इनके जो है वो पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, और वहाँ पे टीचर्स पूछेंगे इनसे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, टीचर इन पे नाराज़ होंगे, तो उनको दोबारा स्कूल जाने का मन नहीं करता है। तो कुछ बच्चे तो आ जाते हैं स्कूल, पर बहुत सारे बच्चे स्कूल कम आना चाहते हैं। बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़े, अच्छा से अच्छा नहीं है नौकरी तो काम सीखे, कोई बिजनेस करे, कोई अच्छा काम। हर माँ बाप भी यही सोच रहा है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास किया है अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए कि जैसे आप जा रहे हैं तो आप जाइए, छोटे बच्चे जो हैं उनसे आप वहाँ क्या काम करवाएं, वो तो काम करेंगे नहीं, खेलेंगे केवल, तो उनको आप यहाँ अभिभावकों के भरोसे छोड़ दीजिए। जो भी है, मान लीजिए दादी दादा हैं, चाचा चाची हैं और लोग हैं, उनके भरोसे छोड़ दीजिए। जब से हम ये चाहते हैं कि हॉस्टल चले नहीं तो हमारे बच्चों का कम से कम भविष्य अच्छा रहेगा, नहीं हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम कहीं से भी दुनिया कमा के आएंगे नहीं, मान लो कुछ पैसा कमा करके तो बच्चों के लिए लगाएंगे नहीं। तो हम लोगों का ये एक उद्देश्य था कि जैसे हमारे बच्चे नहीं, कम से कम ऐसा हॉस्टल अगर हो जाए, नहीं तो मतलब हमारे बच्चों का भविष्य आगे चल के नहीं, हमारा तो जैसे गया तैसे गया, लेकिन बच्चों का भविष्य अच्छे से जाएगा। The most important takeaway from the issue is how not addressing problems like this leads to generational poverty. A lot of families are forced to work and forced to migrate in order to get proper jobs. By doing so, you're only perpetuating the cycle of distress seasonal migration, and how it's an issue that will never end until external forces and external solutions come and help relieve a lot of the issues that families that go through distressing migration face. इनको 5 रुपया दिया और तुमको 10 रुपया दिया। हम लोग रिमेडियल टीचिंग करते हैं, जो अलग से उनको उनके बेस से लेके चलते हैं। मान के चलो जो बच्चे क्लास में कमजोर हैं, उन सारे बच्चों के साथ हम लोग रिमेडियल टीचिंग करते हैं। छोटा भाई हुआ तो भी, अगर छोटी बहन हुई तो भी होता है ना, बड़े वाले बच्चों को अच्छा कम दे दो, छोटे वाले को दे दो ज्यादा। वो रोने लगा पता चला ना, तो फिर दे दो उसको। हाँ, ये है जैसे रोहिणी है। Government should provide funds to schools to run seasonal hostels in the school itself, and it can be managed by the community itself. Parents can form a committee and they can manage it, and it can be done for boys and girls. गवर्नमेंट के हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं, मुफ्त राशन योजना जैसे चल रही है गरीब लोगों के लिए। अब वो लोग यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, घर के परिवार के लोग ही राशन उठाते हैं उनका। अगर उस राशन के बारे में ही व्यवस्था कर दें एक विद्यालय स्तर से, उसी बच्चे को, उसी परिवार को ये सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी जिनके बच्चे विद्यालय में उपस्थित होंगे। Government provides some incentive, then these families would be motivated to keep children in the village itself. After evaluating the issue, the question arises of where one should go from here, and whether that be from a small scale community perspective or a larger international response. It's important to sort of outline the steps that one can take to prevent distressed seasonal migration from getting any worse. The most important thing is that there should be proper
educational facilities and resources there in place for a lot of these children. These educational institutions that should be established should be funded and should be provided by the local NGOs such as Lok Mitra, who are working very tirelessly to fight such issues that happen on small local scales in rural India. And what these educational institutions do is they allow children for a place to learn outside of school and additional help that they can get. अभी से आवाज आ रहा है हमारा, तो फिर से गाएंगे तो शायद अलग आवाज आएगा। आप सबको ट्राई करें। And I think by implementing such learning resources and education facilities, distress seasonal migration will cease to exist in a few decades' time.